Hello students, in today's class we will see next topic, that is polarization of a non-polar dielectric in an external electric field. Student, yesterday we have seen polar dielectric and non-polar dielectric. Okay, so first of all we should understand what is the meaning of heading. Polarization of a non-polar dielectric. दैट मीन्स जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस है ओके उनका पोलराइजेशन होता है कैसे, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में. ओके दैट वी हैव टू सी. नाउ सी स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोगों को दिख रहे हैं देर इज द टू फिगर्स यू कैन ऑब्जर्व हियर. फर्स्ट वन, इन दिस it is given that in the absence of an electric field. Okay, so you can read this. Shown that is the non-polar dielectric in the absence of an electric field. Okay, while the second one in the presence of an electric field. So in the absence of the electric field, yesterday only we have seen that when a substance it is a non-polar dielectric, at that time what will happen, that means they have the symmetrical shape. Okay, and that means their positive charges and the negative charges they both coincide with each other, and that's why we will say कि उनका जो shape होता है they have the symmetrical shape. As they have the symmetrical shape, that means they have the zero dipole. So zero dipole moment. Okay, this is in a normal state. So that means in the absence of an electric field. Now student, we have to find out that what will happen in the presence of an electric field. So in the first paragraph it is given that only what is happen in the presence of the electric field. यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि absence of the electric field में आप लोगों के पास में molecules दिख रहे हैं, उसी के साथ में आप लोगों को positive और negative साथ में दिख रहे हैं हर एक molecules के साथ में. ओके, मतलब दोनों positive और negative separate हो रहे हैं क्या? Is it they separating each other? No, there is no separation, and because of that what we will say, there is a zero dipole moment. Okay, now in the second case you will observe that when the dipole substances, when it is a non-polar dielectric substances, it is placed in an electric field, at that time what will happen, क्या होता है. इन शॉर्ट पहले ऐसे ही बताती मैं आप लोगों को कि जब रखते हैं एट दैट टाइम यू कैन ऑब्जर्व दैट कि जिस डायरेक्शन में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में तुम्हारे पॉजिटिव चार्जेस सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उस मॉलिक्यूल्स के उसी डायरेक्शन में फ्लो होंगे, और नेगेटिव चार्जेस इट विल फ्लो अपोजिट टू दैट ऑफ द positive charges. Okay, now because of that we will say that there is a separation of the positive and negative charges. हर एक molecules में क्या हो रहा है, separation हो रहा है. If we will consider all the molecules, सभी molecules का हम लोग count करेंगे, so what will happen, there will be the नेट डायपोल मोमेंट. सबका हम लोग काउंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नेट डायपोल मोमेंट. एंड दैट्स वाई वी विल से दैट द सेपरेशन ऑफ दिस, वी कैन स्टॉप दिस सेपरेशन. कैसे सेपरेशन हम लोग ये स्टॉप कर सकते हैं, बिकॉज वेन वी विल अप्लाई सम रेस्टोरिंग फोर्स ऑन इट, जब हम इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एज दे आर केप्ट इन एन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, तो क्या होता है कि इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर में एक्सटर्नल फील्ड एक्सर्ट हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ देयर इज़ अ सेपरेशन. अब ये सेपरेशन इतना हो जाता है कि एक मोमेंट आता है कि द मॉलिक्यूल्स गेट डिस्टॉर्टेड, ब्रेक होने के इसमें. सपोज एट दैट टाइम वी विल अप्लाई सम रेस्टोरिंग फोर्स, उसको रेजिस्ट करने वाला फोर्स उसके ऊपर में उतना ही बैलेंस करने वाला फोर्स एक्सर्ट करेंगे. एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस इट विल बी स्टॉप. ओके, एंड दिस each dipole having it is a very tiny dipole. Okay, बहुत छोटे dipoles होते हैं having a very dipole moments. dipole है तो dipole moments हो गए ही, and this induced dipole moment of the different molecules add up. Now this induced molecules means what, this induced मतलब हम लोग जब हम उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तब जाके उनमें क्या होता है, डायपोल क्रिएट होता है, मतलब उसमें इंड्यूस्ड हो रहा है. गेटिंग, सो वी आर टेकिंग, आई विल जस्ट रीड दिस पैराग्राफ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर क्लियरली. इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0, एक्सटर्नल फील्ड E0 है, सो एट दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग, द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज in each molecules of the non-polar dielectric is pulled in the direction of the E0. मैंने अभी बताया
कि जितने भी पॉजिटिव है किसके डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, E0 के, पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ E0, while the center of the negative charges are displaced in the opposite direction. Okay, and therefore the two centers are separated. दो centers separate हो जा रहे हैं and the molecule get distorted. डिस्टॉर्ट हो रहे मतलब ब्रेक होने के कंडीशन, समटाइम ब्रेक होते हैं. ओके, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस स्टॉप, हम उनको स्टॉप कर सकते हैं कैसे, when the force exerted on them by the external field is balanced by the restoring force. जब उसके ऊपर में हम लोग कुछ restoring force अलग से उसके ऊपर में हम लोग exert करेंगे between the charges in the molecules so that the displacement of the charges will be stopped. Okay, so each molecules become a tiny dipole. टाइनी डाइपोल मीन्स डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट हो गई ही, और ये जो पूरा प्रोसेस क्यों हो रहा है, एंड दैट्स वाई दे आर सेइंग दैट इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ नो डाइपोल. डाइपोल क्रिएट नहीं होता है, बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है तो वो क्रिएट होता है, डाइपोल क्रिएट्स होते हैं, एंड दैट्स वाई दे आर सेइंग दैट इज द इंड्यूस्ड डाइपोल. ओके, और इन सबको हम लोग जब ऐड करते हैं वी विल ऐड अप गिविंग अ नेट डाइपोल मोमेंट टू द dielectric in the presence of an external field. So student, now we will see polarization of the polar dielectric in an external electric field. A polarization किसका, that is the polar dielectrics का. Okay, so again we know that again it is given the two diagrams. यहाँ पे आपको फिर से two diagrams दिख रहे हैं. What is saying, first diagram in the absence of an electric field and second one it is in the presence of an electric field. So in the absence of the electric field again we have seen the polar. तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में हम लोगों ने क्या देखा है कि जो निगेटिव और पॉजिटिव के सेंटर्स क्या हो जाते हैं, एज दे कोइंसाइड विथ ईच दे डिड नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर. ओके, एज दे डिड नॉट कोइंसाइड, व्हाई दे डिड नॉट कोइंसाइड, बिकॉज दे आर असिमेट्रिकल शेप. ओके, एंड सिंस दे हैव द परमानेंट डाइपोल, उनमें क्या होता है, परमानेंट डाइपोल्स होते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि हमारे पास में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है दे ऑलरेडी सीन दैट इज़ द परमानेंट डाइपोल. हमारे पास यहाँ पे जो डाइपोल्स है वहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव निगेटिव सेपरेटेड है, बट पर क्या हो रहा है, बट दे आर मूविंग रैंडमली. ओके, दे आर मूविंग रैंडमली, उनमें कोई भी ये नहीं है. वाई, दैट मीन्स दैट इज़ द नो, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर मूविंग रैंडमली, और रैंडमली मूव होने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक दूसरे के साथ में बैलेंस हो जाते हैं. जैसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हो रहा है, तो ये एक दूसरे के साथ में बैलेंस होने की कोशिश करते हैं एज दे आर मूविंग रैंडमली. हेंस द डाइपोल, हेंस द टोटल डाइपोल मोमेंट इज जीरो as they are moving randomly. But when the external electric field apply करते हैं, at that time what will happen, when external electric field apply कर रहे हैं at that time this again I am telling you कि क्या होते हैं, this positive whenever एक जो आपके पास में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है, तो पॉजिटिव हमेशा एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में मूव होता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होता है. ओके, सो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड दोनों क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं. सेपरेट तो हो ही रहे, एट द सेम टाइम व्हाट विल हैपन, देखो यहाँ पे सारे पॉजिटिव किधर, इधर के साइड में है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द E0 एंड द नेगेटिव उसके अपोजिट में है. बट इन दिस केस वी हैव टू से दैट कि एज अ रिजल्ट द डाइपोल डाइलेक्ट्रिक डेवलप अ नेट डाइपोल मोमेंट. सब में डाइपोल मोमेंट नेट क्रिएट हो रहा है, मतलब सबका एडिशन करके हम लोगों को क्या मिल रहा है, नेट डाइपोल में. नाउ इन दिस यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये सारे एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में दिख रहे हैं. एज वी आर कीपिंग, दिस इज मूविंग रैंडमली बट दिस इज इन एन पर्टिकुलर अलाइनमेंट व्हेन वी आर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो हेंस वी विल से द डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड, एंड हमारा जो सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है, तुम्हारा पोलराइज्ड हो रहा है, एंड द एक्सटेंड टू द दिस वन. नाउ सी, now again what he explained in the next, now the applied external electric field which tends to align the dipole with the field. अभी मैंने बताया कि अप्लाइड करने के बाद में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में टेंड्स, वो प्रयास करते हैं, दे ट्राइंग टू
अलाइनमेंट, उनका बराबर अलाइनमेंट दिख रहा है आप लोगों को, अलाइनमेंट द डाइपोल विद द फील्ड. Okay, and second point again it is the thermal energy tending to randomize. Now in the absence of the electric field, यहाँ पे एक अपना एक thermal energy होती है. Okay, now see in the first paragraph you will observe that कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है due to the thermal excitation in the material in the absence of any external field. मतलब इस absence में भी thermal एजिटेशन मतलब उसमें अपनी एक एनर्जी होती है मटेरियल की. ओके, जो क्या करता है उसको रैंडम मूव करने के लिए, एक पर्टिकुलरली बोलेंगे कि उसको मूव करने के लिए रैंडमली उसको एनर्जी देता है. ओके, नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में हो जाता है. ओके, सो द थर्मल एनर्जी टेंडिंग, उनको टेंड्स प्रयास करता है कि वो पूरे मूव करे, टेंडिंग टू रैंडमाइज द अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल. ओके, तो ये हो गया पूरा. एंड दस फ्रॉम दिस, दोनों हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, इसके ऊपर से हमको समझ में आ रहा है दस बोथ पोलर एंड द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डेवलप्स अ नेट डाइपोल मोमेंट. ओके, दोनों में डाइपोल मोमेंट तैयार हो सकते हैं जब एक एक्सटर्नल फील्ड में हम उसको रखते हैं. नॉर्मली क्या होता है कि जो पोलर होता है उसमें ही डाइपोल क्रिएट्स होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ, और नॉन पोलर क्या होता है, देयर इज अ जीरो डाइपोल. बट जब व्हेन वी आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड एट दैट टाइम दोनों में कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है कि दोनों में डाइपोल मोमेंट क्रिएट्स हो जाता है. सो इन दिस अगेन ही एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ द पोलराइजेशन. व्हाट द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन. जो डाइपोल मोमेंट हो रहा है पर वो कैसे, पर यूनिट वॉल्यूम के साथ में, और उसको डिनोट किया है दैट इज द कैपिटल P. ओके, नाउ सी P इट इज इक्वल टू, जनरली वी से दैट इज द xi into E, and this xi it is nothing but the constant, और constant क्या है, that is the electric susceptibility of the dielectric media, उसको बोला जाता है. and this susceptibility जो है E0, that is psi E, it is equal to 0 for the vacuum. That means it is different for the different material. Getting? So I hope you understand both the conditions for non-polar and polar.